Good morning, children. Welcome to the class, your political science class. And here I am with your chapter 4, social justice. As yesterday we started this chapter with the meaning, just the simple meaning of justice. I explained you what you mean by justice here. Justice, न्याय. न्याय मतलब means न्याय, justice to all, in all spheres. Justice in society, justice in the eye of law, justice in economic phenomena, justice in we can say social phenomena. In this way, we see that we want justice in all spheres because human beings interact with all the aspects which are available in our nature as well as in our society. So it is very essential. Why this is essential? Because we all are human beings, creation of God. As you already discussed and already read this chapter in your equality chapter, your third chapter. In this, we understand that we all are human beings, that is creation of God. Then why there is a question of inequality is there? Inequality होनी नहीं चाहिए because क्यों? क्योंकि हम सब human beings हैं. But on the other hand, we see inequality in society because of reasons were there. Like in India especially, there were reasons like we can say discrimination on the basis of caste, gender, race and all that. So this inequality was persisted in our society. It is called social inequality, society based inequality. So all the people, they wanted what they wanted, that they just wanted the abolition of this all type of discrimination, wanted equality and justice. न्याय की जब हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो सोशल जस्टिस का मतलब है कि लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, उनको डेवलपमेंट का उनका मौका मिले, क्योंकि सब लोगों में इतना कोई ना कोई, हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है. आप सब में कोई ना कोई टैलेंट है. इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें जो है आप में भी वही होना चाहिए. Some people are good in, we can say, good in art and craft, some are in technology, some are in their studies. So it's a, we can say, God gift also, God grace, that different people have different qualities. That's why I also read that natural equality. What is natural inequality is here? Natural inequality is there that the people have different talents, people have different characteristics. Why? Because of their physical, because of their another we can intellectual. These are the reasons. But on the other hand, when we see that in society-based inequality, this is originated from society. So this justice they wanted. This justice they wanted, and a long argument and discussion. Yesterday I told you about the discussion between different philosophers, their ideologies, like Plato, Socrates, Aristotle. So in this way we come to know sometimes the people, they ask the Socrates what type of justice they just wanted, what type of justice. Socrates told, sometimes we feel, Socrates ने क्या कहा कि कई बार क्या होता है कि कई लोग गलत कर रहे होते हैं. ठीक है, चीज को आप प्रैक्टिकली समझेंगे. हम लोग भी क्या कई बार अपने घरों में भी ऐसी बात सुनने को हमें मिलती है कि देखो वो पर्सन जो था, ही वाज नॉट गुड, लेकिन उसके साथ सब अच्छा हुआ, उसकी फैमिली सेटल्ड हो गई, उनके जो चिल्ड्रन थे वो अच्छे सेटल्ड हो गए. कई बार वी फील दैट कि कोई जो अनजस्ट होता है उसके साथ सब कुछ जस्ट होता है, और जो जस्ट होता है उसके साथ अनजस्ट होता है. तो क्या हमें अनजस्ट होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन. सोक्रेटिस से कहा गया कि देखिए हम अपनी सोसाइटी, अब देखिए सोक्रेटिस के साथ जो हुआ वो गलत हुआ कि सही हुआ? गलत हुआ. He was a very, we can say, intellectual person, kind-hearted, spiritual person, but in spite of that, what happened to him? I should say he was killed through a planning. So in this way we come to know कि just people के साथ भी unjust हुआ, तो हमें ऐसा कई बार लगता है कि
फार बेटर कि हम भी ऑनेस्ट नहीं होने चाहिए, हमें भी जस्टफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो ऑनेस्ट नहीं है, जो बेईमान है, जो करप्ट है, उनका ज़्यादा प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड। हर चीज की एक लिमिट है, और वो लिमिटेशंस क्या है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस कि उसके डेस्टिनी में ये है कि उसको वो चीज मिलेगी, तो वो चाहे अनजस्ट हो या जस्ट हो, उसको मिला। बट अगर उसने अनजस्टफुली उस चीज को लिया, तो क्या वो लॉन्ग टर्म तक उसको सस्टेन कर सकेगा? कहते हैं ना, झूठ के जो पाँव है या झूठ का सहारा लेकर कितनी हद तक आप आगे जा सकते। तो अनजस्टफुली अगर आपने कुछ सोसाइटी में एक्वायर किया है, अनजस्टफुली आपने सोसाइटी में कोई अपनी पोजीशन बनाई है, देयर वुड बी अ लिमिट, उसकी एक लिमिट होगी। तो सोक्रेटिस he said rather than to why we should first understand what is justice। सोक्रेटिस ने कहा हमें ये समझना है कि जस्टिस क्या है। सोक्रेटिस ने ये कहा कि ऐसा नहीं कि डू गुड, अच्छा करो किनके साथ? केवल आप जिन लोगों को जानते हैं। एंड डू बैड विद योर एनिमीज, दिस इज ऑल्सो नॉट अ जस्टिस। सोक्रेटिस ने क्लियर समझाया कि जस्टिस क्या है। जस्टिस का मतलब उन्होंने समझाया कि अगर आप जो है अच्छा करते हैं, डू गुड, दिस इज गुड, that you do good with other people, but this is also wrong if you do wrong with your enemies and you are pursuing your only suit, manipulated the suit, this is also not justice। उन्होंने कहा जस्टिस क्या है? जस्टिस का मायने ये है कि आप अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा करें, अपने लोगों जिनके साथ आपका रिलेशन है उनके साथ भी अच्छा करें, प्लस उन चीजों को खाली फॉलो नहीं करें जो आपकी सेल्फिशनेस को पूरा करती है, आप उन चीजों को फॉलो करें जो दूसरों के लिए भी, वो है जस्टिस। जहां पर उनकी भी नीड्स फुलफिल होती है और आपकी भी होती है, वो है जस्टिस। तो इस चीज को सोक्रेटिस ने इस तरह से ऐड करके बताया कि जिस तरह से एक डॉक्टर के पास डिफरेंट डिजीजेस पेशेंट्स आते हैं, लेकिन वो डॉक्टर उन पेशेंट्स को बिल्कुल एक जैसा डील करता है। डील मीन्स एक जैसा मतलब सिंपैथेटिकली करता है, उनकी केयर करता है, हर एक पेशेंट की केयर करता है। सेम एक सोसाइटी, एक गवर्नमेंट को ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने लोगों के साथ, अपने लोगों से मतलब मीन्स ऑल द पीपल दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्राउंड, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। That's why yesterday I also told you कि जो इमैनुअल कांट थे फिलोसोफर, उन्होंने ग्रीक फिलोसोफर थे, उनकी थियरी क्या थी? उन्होंने ये कहा कि एवरीबडी वी आर ह्यूमन बीइंग, सो वी हैव सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। What are these similar characteristics? That we have a soul, we have these organs, we have the body parts also, they have the intellectual also, but levels are different. On the basis of these characteristics we are human। कहते हैं ना, ये आखिर हम इंसान हैं, है ना, वो भी इंसान है। जस्ट फॉर द ह्यूमैनिटी यू शुड टेक दिस स्टेप। मानवता के नाते ही आप ये कदम उठा लें, उनकी भलाई कर दें आप। मान लीजिए आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, मान लीजिए वो आपके कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन मानव तो है, यू आर ऑल्सो एन ह्यूमन बीइंग। तो इमैनुअल कांट जो थे, उन्होंने इसी चीज पे फोर्स किया कि बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी शेयर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स व्हाई वी शुड इक्वली ट्रीटेड। And he also believed that all the people, they have different their qualities and talents and their intellectual. According to that, so equal opportunity should be given to all. That's why they just receive their dues. कि अगर हम अपॉर्चुनिटीज उनको इक्वली उनके साथ ट्रीट करते हैं, तो उनको जो उनका जो ड्यू है, यानी उनको जो मिलना चाहिए, वो उन्हें मिलेगा। आप इक्वालिटी के चैप्टर को इसके साथ ऐड करके पढ़ेंगे तो आपको ये लेसन और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां सब कुछ यही था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। तो जिसमें टैलेंट होगा वो निखर के आएगा, वो लोगों के सामने आएगा, वो छिपा नहीं रहेगा। आप बच्चों में जो टैलेंट है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अपना पूरा डेवलपमेंट करने का, गुड एजुकेशन यू आर रिसीविंग,
Now it depends on your level, that your efforts also, कि आप उस पर कितनी मेहनत करते हो, कितना रिसीव करते हो, और उस रिसीव के साथ कितना आप उसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करते हो. This depends person to person. But one similar thing is there. What is similar thing? Opportunity सबको दी जा रही है. आपके पेरेंट्स ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी एजुकेशन में. सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है. अब आप में से कुछ बच्चे आईएएस बनेंगे, कुछ आईएएस बनेंगे, कुछ पुलिस ऑफिसर बनेंगे, कुछ हो सकता है क्लैरिकल जॉब में जाएंगे. तो व्हाट इज दिस? अपॉर्चुनिटी सिमिलर इज गिवन टू यू, बट हाउ यू यूज दिस अपॉर्चुनिटी डिफरेंटली. तो कमलकांत जो एमिनल कांत जो थे, उन्होंने जो ये बात कही, उनका कहने का मकसद ही यही था कि डिफरेंट पीपल दे रिसाइड टुगेदर इन द सोसाइटी, बट वन मोटो इज दैट ऑल पीपल हैव देयर डिफरेंट टैलेंट्स and they should give equal opportunity to enhance their talent, to enhance their skills. This is called the social justice. सामाजिक न्याय, इस चीज को ऐसे समय समाज से जुड़ा हुआ जो सारी चीजें हैं वो न्याय है. जब हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं वो सामाजिक न्याय है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं वो है सामाजिक न्याय. इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज बात करते हैं वो है सामाजिक न्याय. जस्ट कीप इन माइंड दिस. एंड वन मोर थिंग, इट इज एन आवर फंडामेंटल राइट ऑल्सो, जहां हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं. और वन मोर एग्जाम्पल इज देयर वेयर द अनटचेबिलिटी इज टोटली अबॉलिश्ड. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल जस्टिस. Reservation of the special needs people. This is the example of social justice. So, just first of all, keep in mind what is social justice here, because political justice is also there, economic justice is also there. First of all, we have to differentiate between all types of these justice. Whenever we talk about social justice, because the theme of their chapter is social justice, it is related to the society, and whatever the society contains, it applies to all the persons. I think the concept is clear. Yes, everybody, raise your hand कि जो सोशल जस्टिस समझा रही हो वो उसका कंसेप्ट समझ में आया. प्लीज रेज योर हैंड. Okay, okay, good, thank you. Let's move to the next topic now. Social justice means it is now well-being of all the people without any discrimination. सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए भला हो, वो है social justice. Equal treatment for equal. Now the topic is, today's topic is equal treatment for equal. Why? The theme is that why we want that equal treatment for equal. Who are equals here? We all are equal. We are human beings. That's why we share some equal characteristics. We have equal characteristics. That's why equal treatment is very necessary. बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम इंसान हैं, इसलिए हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या इक्वल ट्रीटमेंट हर बार होता है? होता है? कई बार नहीं होता है. और जब जब नहीं होता है तब तब क्या हुआ है? स्ट्रगल्स हुए हैं, रॉयट्स हुए हैं, लोगों ने रिसेंटमेंट दिखाया है, रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए लड़ाई की है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया तो उसकी लड़ाई हुई है. तो आप देखिए कि हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री जो है इस चीज से आपको बताएगी कि कोई भी चीज जब जब सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन आई है उसको दूर करने के लिए क्या किया है? स्टेप्स उठाए. नॉट ओनली इट इज बाय द गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द स्टेप्स आर टेकन बाय द सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप. As you already read in your class 10, political parties, the role of political parties is that कि लोगों की एस्पायरेशन क्या है, गोल्स क्या है, वो कौन पहुंचाता है? पॉलिटिकल पार्टी. So in this way we see that these types of revolutions, these types of, we can say, awareness, that is, it is brought by the political parties as well as by the social. Here I am talking about equal treatment for equal.
what type of treatment you want. Equal treatment where you want. Equal treatment we want in all spheres. Right? In this, according to that some important fundamental rights are there, some important civil rights are there. What are fundamental rights? It is in our constitution, 6 fundamental rights are there. And everybody know that these rights are given to all citizens of India equally, without any discrimination. On the other hand, I am talking about the civil rights. What are these civil rights? Like liberty, like property, wealth, types of civil rights, and some political rights like right to vote, right to speak, right to discussion, right to assemble, right to make organization. All types of different rights and sub rights are there. Right to dignity, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है. कल मैंने बात की थी आत्मसम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की. वहीं हम डिग्निफाइड पीपल की बात करते हैं. ऑल आर पीपल दे जस्ट वांटेड टू नो एज अ डिग्निफाइड पीपल. सबको अपना सम्मान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो एक वर्कर है, चाहे एक लेबर है. अगर आप उसके साथ गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो आप गलत हैं, वो व्यक्ति नहीं. और इस चीज का अगर वो विरोध करता है, अगर आपके अगेंस्ट में कुछ कहता है, इट इज राइट, क्योंकि उसको अपनी डिग्निटी बचाने का अधिकार है. दिस इज कॉल्ड इक्वल ट्रीटमेंट. We know that in society different people they are indulged in different jobs. So that's why sometimes we treat with the people differently. This I'll discuss the topic later. And in your chapter equality, where the concept is given, it is not necessary that we should treat the people equally in all the spheres, in all the levels, and all the time. I'll explain you. So here I am talking about the civil rights and equal treatment. Civil rights, like I told you, the rights like fundamental and some civil like liberty, speech, dignity, freedom. These are the civil rights and all required. These rights and equally should be given. So this is called the equal treatment. No discrimination on any ground. Like belonging to on grounds here means like that the person is belonging to different caste, different gender, different race. Then you start to discriminate the people on these grounds. This is not called a justice. It is unjust. And what is justice? You treat all the people without any discrimination on these grounds. This is called the equal treatment. Equal treatment is also very necessary to just the development of any nation. क्या किसी देश का विकास हो सकता है सब लोगों को साथ में लिए हुए? अगर आप लेटेस्ट न्यूज पढ़े, जहां हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उसकी नींव रखी जा चुकी है, सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ. वहां पर पीएम मोदी ने अपने जो एजेंडा थे, उन्होंने फिर देखो, उन्हें पता है क्लियरली कि अब इस वायरस के साथ ही हमें रहना है. और देश की ये क्राइसिस जो आई है, सभी तरह का क्राइसिस आ गया पूरे वर्ल्ड में. उन क्राइसिस के साथ ही उन्हें अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है. तो जहां पर मोदी जी की अगर हम बात करें, रोज उनके 2-4 दिन में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज आती है, तो आपको पता चलेगा कि राजनीति जो है, पॉलिटिकल जिसको हम साइंस बोल रहे हैं, उसे समझने के लिए आपको बहुत डीपली इस चीज को समझना होगा कि हमने जब बात कही सबका साथ सबका विकास की, दोस्तों किसी बात नहीं. डीप मीनिंग इट हैज. सबका साथ यानी इंडिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उन सबको, दे आर लिविंग इन हिल एरियाज, इन रिमोटेस्ट एरियाज, इन रूरल एरियाज, illiterate people are there, tribal people are. How it can be possible? I am just speaking in 2 words, सबका साथ सबका विकास. Practically is it possible? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा, definitely. But overall, what is the motto of that? The development for all. और किसी भी देश जब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता जब तक सब साथ में नहीं होंगे. And what it requires? It requires social justice, equal treatment.
living in different areas, illiterate people, very poor people, we can say that tribal people, primitive people. In spite of that, all the people, they should be treated equally because we all are human beings. We are also part of the same nation. We also just, we can say that because of all the people, the country can be progressed. So what it requires? Equity, equal rights, equal access to all resources. Sometimes we see some discrimination on the basis of, like, we can take some example here to try to understand कि equal treatment कहाँ नहीं हो रहा. समझ लीजिए कास्ट बेस पे कोई अगर हम इस चीज को समझे कि कास्ट बेस्ड equal treatment नहीं हो रहा. Two caste people are there, they are doing same job, but one is belonging to higher caste, like we can say कि ब्राह्मण वगैरह हिंदू उसमें आ रहे हैं और belong, some are just considered as a lower caste. But what is here, we can say it is not, they are both are not treating equally because one who is belonging to the higher caste receiving good behavior, receiving good salary, receiving good position status. On the other hand, the same work is done by the another lower caste people but not receiving the same salary, same status and the same respect. Is it called the equal treatment? No, it is not. On the other hand, also we also hear about the in your chapter equality. Totally, it is so related. Justice and equality, it is totally related. So in that chapter, you already just heard about that कि women जो है एक weak gender माने जाते थे शुरू से और उनको इक्वालिटी से जोड़ के पढ़ा रही है जस्टिस को. जहां पर वुमेन को माना जाता था कि वीक जेंडर है इसलिए इन्हें कोई राइट्स नहीं देना चाहिए, इन्हें तो सिर्फ क्या है कन्फाइंड एरिया में रखना चाहिए, हाउस होल्ड वर्क में रखना चाहिए, इन्हें जो है स्पेशल जो है कोई डिस्कशन में कोई पब्लिक मीटिंग्स में कुछ भी साथ मतलब उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए. तो वहां पर इनइक्वालिटी हो रही बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ जेंडर. और यहाँ पर हम जस्टिस की बात करें तो वुमेन के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है. हम जो बात कर रहे थे कि जहाँ पर उनको राइट्स नहीं दिए गए, जहाँ उनको डिस्कशन में पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट इक्वली ट्रीटेड पीपल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सोशल injustice because women are also part of the society and society is not treating same as they're treating with the male. Like the male and female both are just doing the same work, teaching or whatever the job they adopted in offices and other areas, but they are just getting the salary differently. Like one male is just receiving good salary, handsome salary, but on the other hand, the women who is doing the same job but receiving very low salary. This is called the discrimination, not equal treatment. Social justice is not there, so it requires. What requires? Equal treatment. Women, men, what is this? This is we can say biological difference. But the above thing of all this, that we all are human beings. So they should be treated equally. The concept is here, equal treatment for equals. Who are equals here? All people. Different gender. Old age, or we can say the people, the age-old people, like the children, men, women, these should be treated equally. Without just keeping in mind that belonging to different sections of the society, caste, color is not we can say discrimination on the basis of color was not practiced in India. It was in other countries, like a good example, South Africa. Some other countries were also the US also. So we can say that on all these grounds, the equal treatment is required. That's why, because one thing important, we all are human. Now, the next topic is proportionate justice. First of all, you have to understand what is proportion. Proportion क्या होता है बच्चों?
कि मान लीजिए ये 100% है, इसका आपको प्रपोर्शन निकालना है 50, यानी 50% जो है इस होल का जो है वो प्रपोर्शन निकल गया। अब प्रोपोर्शनेट जस्टिस जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रोपोर्शनेट मतलब ये है कि कुछ लोगों का हमने जैसे 100% लोग माने, उनमें से क्या, अब क्वेश्चन पहले हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो 100% पीपल है जिसमें सभी तरह के लोग हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा जिसको कहा जाए रिनाउंड पर्सनालिटीज है, एमिनेंट पर्सनालिटीज है, जैसे हम पीएम ले लें, प्रेसिडेंट ले लें, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले लें, प्लस आर्मी ऑफिसर्स ले लें, मतलब हाई रैंक पीपल। दूसरी तरफ हम वर्कर्स ले लें, फोर्थ क्लास जो है पीपल जो वर्क करते हैं वो ले लें, सीजन फार्मर्स लें। तो क्या हम सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर सकते हैं? क्या हम सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बेसिकली हम इक्वल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो क्या है कि हम किसी के साथ ह्यूमैनिटी के साथ उसके साथ सिंपैथी रख सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, ये सब चीज। लेकिन दूसरी तरफ वापस वही चीज आ रही है कि आइडेंटिकली क्या हम सब पर्सन को एक इक्वली ट्रीट कर सकते हैं, इक्वल उसी सेम टाइम पर? तो एग्जाम्पल सबसे बढ़िया यही है कि प्राइम मिनिस्टर को जो प्रिविलेजेस मिली है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो वर्कर है या किसी के घर में काम करने वाली मेड है, क्या हम वो प्रिविलेजेस उसको दे सकते हैं? या हम ये कहते हैं कि जो घर का मालिक है, उस द ऑनर ऑफ द हाउस, जो ट्रीटमेंट जो रिस्पेक्ट उस ऑनर ऑफ द हाउस की है, वो ट्रीटमेंट वो रिस्पेक्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो क्या मिलेगा, उसका स्टेटस जो होगा वो उसके साथ होगा, इक्वली नहीं हो सकता। आइडेंटिकल पीपल डिफरेंट, आइडेंटिकल पीपल डिफरेंट ट्रीटमेंट इज देयर। इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझे, एक बच्चा जो चाइल्ड इज देयर जिसका ब्रॉटअप कहाँ पर होता है? एक बहुत गरीब परिवार में होता है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन कि उसके पास गुड क्वालिटी जो है एम्यूनिटीज नहीं है, जैसे एजुकेशन नहीं है, हाउस नहीं है, न्यूट्रिशन फूड नहीं है, तो उस बच्चे के साथ इनइक्वालिटी होती है। सोसाइटी उसके साथ इनइक्वालिटी रखती है कि ये बच्चा तो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, लो कैटेगरी का बच्चा है, एजुकेशन नहीं है, पुअर इसकी न्यूट्रिशन डाइट रही है, हेल्दी नहीं है, ये सब कुछ। तो सोशली जो है लोग उसको बॉयकॉट कर देते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ये एक्सेप्टेबल है? इट इज नॉट। द क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड, द क्वेश्चन इज आस्किंग हियर व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू ऑल दीज पर्सन। कि एक बच्चा जिसके साथ इक्वालिटी हो रही है, सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है, उसका रीजन था तो वो गलत है। लेकिन एक रीजन जो हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे कि एक घर के मालिक के साथ और एक घर के वर्कर के साथ, वो सही है। उसका रीजन है डिफरेंट पीपल दे वर्क डिफरेंटली सो दे रिसीव द सैलरी एंड स्टेटस डिफरेंट। जस्ट वेट, एक जो डॉक्टर है, एक जो डॉक्टर की एक रेपुटेशन है, जो रेपो है उसका, एक उसकी जो सैलरी है, उसका जो घर है, उसकी जो सोसाइटी में स्टेटस है, क्या वो एक नर्स का, वार्ड बॉय का होगा? क्या नहीं होगा ना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि उनका काम अलग अलग, ठीक है, उनका काम अलग अलग है। उनका डॉक्टर जो एक बना है उसने कितना स्ट्रगल किया, कितना फाइट किया, कितना एफर्ट लगाया, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को उसने निखारा, इतना टाइम मैनेजमेंट किया, इतना टाइम डिवोट किया, तब जाके वो डॉक्टर बने। और वही ट्रीटमेंट अगर उस नर्स को या वार्ड बॉय को या और भी हॉस्पिटल्स में आपको पता है कि कितने सारे रेंटर्स के वर्कर्स होते हैं, उन सबको डॉक्टर के इक्विवेलेंट अगर ट्रीट किया तो फिर तो कोई डॉक्टर को कोई इतना बनेगा ही नहीं। सब कहेंगे कि लो सैलरी भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम मेहनत क्यों करें? क्या ये सही है? दिस इज नॉट कॉल्ड सोशल इनजस्टिस, दिस इज कॉल्ड सोशल जस्टिस।
अब आपकी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सब बच्चे एक क्लास में एग्जाम देने के लिए अपीयर हुए, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत करी, कुछ बच्चों ने कम करी, ठीक है। लेकिन सब बच्चे अब चाहते क्या है कि सबको इक्वल मार्क्स मिल जाए। सबने मेहनत सबने अलग अलग की, एफर्ट सबने अलग अलग डाले, पढ़ने का तरीका सबने अलग अलग, किसी ने रिटर्न नोट्स बनाए, किसी ने टाइम मैनेजमेंट अपने को, कम सोए कम खाए, मेहनत खूब की। अब जिसने स्कोर अकॉर्डिंग टू द हार्ड वर्क एंड देयर एफर्ट्स एंड टैलेंट, द स्टूडेंट्स विल जस्ट स्कोर द मार्क्स डिफरेंट। क्या आप तब भी चाहेंगे कि इक्वल ट्रीटमेंट हो? इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसका रीजन है कि हर बच्चे की मेहनत अलग है, तो उस हिसाब से उसका स्कोर भी अलग होगा। अभी आपका क्लास 10 का रिजल्ट आया तो सबकी परसेंटेज अलग क्यों है? सबको बोर्ड एक जैसा नंबर दे देता। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, जहां पर वर्क के अकॉर्डिंग, टैलेंट के अकॉर्डिंग, आपने अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो अचीव किया वो है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शन के हिसाब से आपने जितनी मेहनत की उतना मिला। 50% की तो 50% मिलेगा, 100% की तो 100% मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट जस्टिस एंड इट इज अ जस्टिस, नॉट अनजस्टिस। ये जस्टिस मेरे हिसाब से आपको बहुत 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया और बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि जो रिवार्ड दिया जाता है, द रिवार्ड इट शुड बी गिवन डिफरेंट काइंड अकॉर्डिंग टू द वर्क डिफरेंटली। एज अ होल इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें क्या समझ में आ रहा है कि डिफरेंट रिवार्ड्स आर गिवन टू डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू द वर्क दे परफॉर्म्ड डिफरेंटली। जो उन्होंने काम किया उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिला। तो दिस इज कॉल्ड, वी कैन से कि जो है ये प्रोपोर्शनेट है। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि अगर हम ऐसा करते हैं सोसाइटी में तो क्या सबको जस्टिस मिल जाता है? देखो, एक्सेप्शन केसेस हर समाज में होते हैं। एक्सेप्शन केसेस आपको कहीं ना कहीं हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। एक एक्सेप्शन केस समझा देते हैं तो उसको बात समझ में आएगी। एक क्लास में बच्चा है जिसको टीचर पूरे साल कहती है कि ये पास नहीं हो पाएगा, वो बच्चा पास हो जाता है 60%, 50% से पास हो जाता है। कैसे पास हो गया? उसको कैसे वो पास हुआ? क्या उसने मेहनत की बाद में या नहीं की? या एक अभी आपके जो इसमें बोर्ड के हिसाब से एक पैटर्न यूज किया था कि कुछ बच्चों को मॉरल मोटिवेट करने के लिए जो है थोड़े से मार्क्स जो है बोर्ड भी दे दी। तो क्या ये जस्टिस है या अनजस्टिस? आपके सामने ये अनजस्टिस है, क्योंकि ये बच्चा जो पूरे साल मेहनत नहीं कर रहा वो भी पास हो रहा है, तो ये अनजस्टिस लगेगा, टॉलरेट नहीं होगा हमें। लेकिन जहां पर ये स्टेप उठाया, गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, बोर्ड ने उठाया, केवल उस बच्चे को आगे प्रोग्रेस करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसका मॉरल बनाए रखने के लिए, तो वहां पर हम जस्टिस की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे जस्टिस की? क्योंकि अगर वो बच्चा क्योंकि देखो मौका सबको दिया जाता है, उस मौके के अनुसार अगर वो चाइल्ड जो है समझ जाता है तो आगे अपना मेहनत करके बढ़ जाएगा। और अगर वास्तव में उसमें टैलेंट नहीं है तो हर बार उसको जो है पुश नहीं किया जा सकता, बढ़ना खुद को ही बढ़ेगा। हम जहां प्रोपोर्शनेट की बात करते हैं वहां कई बार ऐसा होता है जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या प्रोड्यूसर्स हैं या जो बहुत डेंजरस वर्क कर रहे हैं, कई बार तो ऐसा होता है इन वर्कर्स को जो है उनका वेज भी नहीं मिलता। समझ रहे बात कहना क्या चाह रही हूँ मैं? डिफरेंट वर्क डिफरेंटली, परफॉर्मेंस डिफरेंटली, दे रिसीव द सैलरी also different. But sometimes the exception cases are also there, because I am talking about proportionate justice. There are some workers, they cannot just receive their wages also because of reasons are there. अब reasons क्या है? वहां पर injustice हो रहा है। injustice कौन कर रहा है? उनका मालिक कर रहा है।
उनको उनका मेहनताना नहीं दे रहा, उन्होंने जो मेहनत की है उसका पैसा नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट स्टेप्स ले, जहाँ पर हमने मिनिमम वेज पढ़ा है, जहाँ पर हम किसानों को बचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, ये स्टेप। और कई बार ऐसा होता है कि कंट्री के अंदर ऐसे लोग जो बहुत ही डेंजरस, और कहते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि सोशली बहुत ऐसा वर्क करते हैं जो सोसाइटी के लिए लाभदायक, लेकिन उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल पुलिस। अब आपको पता है कि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है कितना वास्ट है। अब आप मुझे बताइए कि कांस्टेबल से नीचे भी जो सब कांस्टेबल्स होते हैं या उनसे भी नीचे होते हैं, जो रैंकिंग होती है, हायरार्की सिस्टम, क्या सबको रिवॉर्ड दिया जाता है? समटाइम इट इज रिकॉग्नाइज्ड, समटाइम इट इज नॉट। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस से मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेट जस्टिस से मतलब ये है कि ये तो एक्सेप्शन केसेस है, बट आई डिस्कस विद यू कि ये एक्सेप्शन केसेस आपको हर सोसाइटी में मिल जाएंगे, लेकिन प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब ये है कि आप इक्वली जो है सब लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एफर्ट, टैलेंट, हार्डवर्क एंड देयर डिवोशन। जिन्होंने ज्यादा मेहनत की है ज्यादा रिसीव किया, जिनके अंदर टैलेंट है, जिनमें स्किल है, उसके साथ ज्यादा होगा, जिनमें कम है वो कम होगा। तो इन द लास्ट वी कैन से कि हमें करना क्या है। जो प्रिंसिपल है किस चीज का? सोशल जस्टिस, इसको बैलेंस रखना है। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बैलेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस। अब हमें जो सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको किसके साथ बैलेंस करना है? प्रोपोर्शनेट जस्टिस के साथ, यानी जिसने जितनी प्रोपोर्शन में मेहनत की है उसको वो सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आप इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे कई पीपल होते हैं जिन्हें differently people, we can say differently abled people, they required more privileges, more, we can say that facilities to give them equal treatment and bring them to the mainstream of the society. Tomorrow I'll discuss this topic कि equal treatment, जहाँ पर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना होता है। और सेकंड मोर थिंग, इन आवर प्रीवियस चैप्टर इन इक्वालिटी वी ऑलरेडी डन आवर अफर्मेटिव एक्शन। Affirmative action where these actions are being taken by the government for what purposes? These differently abled persons, to bring them to the mainstream of the society. Tomorrow I'll discuss thoroughly this topic with you and another topic. आज जो हमने डिस्कस किया आई होप कि बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। प्लीज रेज योर हैंड। और अगर कोई भी डाउट है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। Any question you want to ask, because one thing is required.